धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरे को बहुत खुशी हुई आपकी मीटिंग में आने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। I am going to speak just for a few minutes about the importance of the work that you are doing. थोड़े मिनट में खाली बोलूंगा जो आप लोग सब काम कर रहे हैं आवास अधिकार को लेकर बहुत महत्वपूर्ण काम है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो समस्याएं आप सबके सामने हैं, आवास की, जमीन की, पानी की, बिजली की, ये सब समस्याएं पूरी दुनिया में लोगों को है। पूरी दुनिया में खाली जो गरीब देश हैं वही नहीं, जो अमीर देश हैं वहां पर भी बेघर की जो समस्या है वो बढ़ रही है। जो लोग अपना मकान नहीं रख सकते हैं वो लोग उन लोगों की भी संख्याएं बढ़ रही हैं। What I am saying is that the problems that you are all facing on housing and land rights, on access to water, sanitation, electricity are problems that are being faced by people all over the world. I have been to many countries in the last 4 years in my work, both in the north and the south, and we are seeing increasing violations of the right to housing and the right to land. And one of the main problems is that governments are not taking their responsibility either to the constitutions or to the international human rights seriously. मैं ये कह रहा हूं कि ये जो समस्याएं बढ़ रही हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो दुनिया में जो भी सरकारें हैं अलग या तो साथ में मिलके जो कुछ भी कानून और नियम बनाए हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। उन कानूनों को कॉन्ट्री उनका वायलेशंस हो रहा है और इस सब के खिलाफ हम लोगों को साथ में मिलके जो काम करना है उस रास्ते पे ये जो बैठक हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये भी कहूंगा कि जो ये स्थितियां हैं वो मानव अधिकार की तरफ से लेकर हमें आगे बढ़ना है। What I'm saying is that all of these problems we have to move forward by accepting that these are our human rights. All of us have the right to housing, all of us have the right to land, all of us have the right to water, electricity and sanitation. And when these rights are not realized, we have to fight them as violations of our rights, and we have to hold the governments accountable that are responsible for the violations of these rights. जो आवास अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव अधिकार के तौर पे माना गया है, उसका जो वायलेशंस हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें सरकारों की क्या जिम्मेवारी है ये पूरा समझकर हमें आगे बढ़ना है। और हमें ये भी देखना है कि सबसे बड़ा जो वायलेशन है वो किस रूप से है। जैसे आप लोग बातचीत कर रहे हैं, जो इविक्शन की बात है, विस्थापन की बात है, और जो पुनर्वास की बात है, जिसमें पुनर्वास में लोगों को जब पुनर्वास मिलता है तो मानवाधिकार की तरफ से उसको सोच के नहीं मिलता है। तो what I'm saying is that violations that are happening, the worst violation of the right to housing is for a person or a community to be evicted from their homes, and I think we have to recognize this as a violation of the right to housing and move forward. The United Nations has for many years adopted instruments and other policies that make it very clear that there are 3 or 4 steps that have to be taken if an eviction is contemplated. The first step is that there has to be full information and consultation with people. These are all instruments that are there. We have to become aware of them and act on them. The second step is that the evictions can only happen once there is consultation and when there is full resettlement provided and legal assistance provided. मैं ये कह रहा हूँ कि जो विस्थापन की बात है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र ने मिलके इसके कानून बनाए हैं, इसकी काफी चर्चा हुई है और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विस्थापन तभी हो सकता है जब 4-5 अलग-अलग स्टेप्स लिए जाएं। तो सबसे पहले जो जानकारी मिलनी चाहिए लोगों को कि विस्थापन होने वाला है और लोगों के साथ पूरा मिल के जो दूसरी जगह पे पुनर्वास होना है उसके बारे में और
कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और कानूनी मदद भी मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजें अपने देश ने भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी है। The India has agreed to all these instruments, and so we have to hold our governments at the local level, the municipalities at the state level, and the national level accountable. And I think when you meet the president tomorrow, you must insist that India, as a democratic country, a supposedly democratic country, should respect the right to housing of everyone who is in this country. मैं कह रहा हूं कि हमारे देश ने ये सारे जो कानून है, नियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन पर हस्ताक्षर की है, उनके ऊपर रिपोर्ट्स लिखे गए हैं, और जो बाहर जाके हमारे देश के जो सरकार के लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम सब लोग मानवाधिकार मानते हैं। तो जब आप लोग कल प्रेसिडेंट को मिलेंगे तो उन्हें जरूर ये कहिए कि ये सब अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं तो इसको यहाँ पर क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, और अगर संयुक्त राष्ट्र भी ये कह रहा है तो हम लोग अलग किस्म की पॉलिसीज क्यों बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा है उससे अलग है। और आप लोगों ने जो मेमोरेंडम तैयार किया है वो मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है। उसमें खाली 2-3 चीजें जोड़ने की जरूरत है। एक तो कि जो कुछ भी किया जा रहा हो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है मानवाधिकार के उससे जोड़ के किया जाए। और जो भारत में आजकल बातचीत हो रही है राइट टू इंफॉर्मेशन की, राइट टू फूड की, उसमें राइट टू हाउसिंग को छोड़ना नहीं चाहिए। आवास अधिकार की बात इंफॉर्मेशन से और फूड, राइट टू फूड से भी मिली हुई है, तो इन सबको अलग नहीं लेना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट there is a great deal of debate in the country amongst civil society, amongst the bureaucrats, amongst the government about how to implement the right to information, how to implement the right to food, but we don't hear anything about the right to housing. And I think it is very important that this coalition that has come together should insist that the right to housing has equal status to the other rights. तो ये सब ये सारे अधिकार अलग अलग जो है उनको साथ में लेके हमें चलना है। मेरी तरफ से जितनी भी मदद मैं कर सकूंगा मैं करने को तैयार हूं। हम लोगों ने मैं 15 साल पहले जो राष्ट्रीय आवास अधिकार अभियान था, the National Campaign for Housing Rights, that was here very active in India in the late 80s and early 90s. I was a co-convener of that. हम लोगों ने उस टाइम पे बहुत कोशिश की थी। We also developed a rights bill. I understand you're going to discuss that later on this afternoon. हम लोगों ने सबने साथ में मिलके एक राष्ट्रीय स्तर पे आवास अधिकार का बिल भी तैयार किया था। वो मैंने प्रोग्राम में देखा है, आप लोग बिल के बारे में बाद में बातचीत करने वाले हैं। तो वो सब जो काम था वो आवास अधिकार को मानवाधिकार लेकर ही हम लोगों ने किया था। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोग उस काम को आगे ले जा रहे हैं, और जो कुछ भी मेरी तरफ से मैं कर सकता हूं मैं आप सबके साथ हूं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इधर आए हैं, और आप लोगों के काम में मैं बिल्कुल मिलित रहूंगा आपकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। मिलिंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास कोई सवाल हो तो आप लिख के रखिएगा। अभी एक जरूरी काम है, आज के दिन हमारे बापू जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। तो अपने को 2 अक्टूबर है, अपने बापू जी साथ में बहुत दिन 1 तारीख से अपने साथ हैं, तो उनको यहाँ ले आते हैं और अपन गांधी जयंती थोड़ा सा मना ले। जो बापू को मानते हैं, ऐसे लोग भी है जो बापू को नहीं मानते, कुछ लोग बापू को मानते हैं। तो जो बापू को मानते हैं उनमें से कोई लोग, और हो सके तो महिलाएं, बस्ती की जाबाज महिलाएं, यदि बापू को मानते हैं तो यहाँ पर 5-6 हार है, तो आप गिना सकते हैं अपने बापू को।
भाई गीत गाएंगे हम सब मिलके, है ना? बहुत सुंदर गीत है। एक बार छठे भाषण के आप सुरीले सब गीत गाने हैं। तेरो नाम ईश्वर नाम अल्लाह तेरो नाम तेरो नाम मति दे अल्लाह तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम ईश्वर सारे जग के निर्बल को बल देने वाले बलवान दे दे ज्ञान देखिए बड़ा मजा करें ना, बंद नहीं करना। बहुत खूबसूरत। निर्बल को बल देने वाले को दे दे ज्ञान। अज्ञानी लोग बल वाले घोर बल वालों को ज्ञान दे दे। बल देता ही है। वापिस से बल को बल दे वाले बल देने बल वालों दे दे तेरो नाम तेरो नाम जैसे अपने इसमें मांग पत्र में भी है ना कि हम संविधान में उसको बुनियादी हक की बात कर रहे हैं। तो क्या संयुक्त राष्ट्र भी ऐसा मानता है कि बुनियादी हक है? नहीं, बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र में पिछले 30 साल से ये माना गया है कि आवास अधिकार मानव अधिकार है। जो जैसे दूसरे मानव अधिकार हैं, जिंदगी के, खाने के, स्वास्थ्य के, उन सब के बराबर आवास अधिकार माना गया है। और अपने मतलब
बहुत दूसरे सारे देशों में, साउथ अफ्रीका में, मेक्सिको में, पेरू में और जो भी देश हैं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और उसके ऊपर काफी कानून बन रहे हैं। तो और सब जो देश हैं, ब्राजील हैं, वो हम सब हमारे देश से बहुत आगे हैं। हमारे देश में ये स्थिति इतनी गंभीर इसलिए है क्योंकि सरकार ने अभी तक इसको माना नहीं है। इसलिए आप लोग जो सब कर रहे हैं कि आवास अधिकार को संयुक्त आवास अधिकार को फंडामेंटल राइट जैसा माना जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि स्टेट में कहीं भी कुछ भी इस्लाम में एक प्रॉब्लम हो रहा है हाउसिंग को लेकर, उसे हम इंटरनेशनल लेवल तक कैसा लेके जाएंगे? इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस है या ILO है, वो ऑर्गेनाइजेशंस तक अपना बात वॉइस कैसा लेके जाए? इसमें काफी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। इसमें आप में से कई ग्रुप्स मिले हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली में हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क है, हाउसिंग, ये जो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क है, ऐसी संस्थाएं हैं जो लोकल लेवल का काम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ले जाएं, उसके ऊपर काफी इसमें काम हुआ है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर अलग अलग कमिटीज बनी हुई हैं मानवाधिकार के ऊपर, पर एक कमेटी ऐसी है जो आवास अधिकार के ऊपर बहुत काम करती है। ये कमेटी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट बोल आर्थिक और सामाजिक अधिकार लेके आगे जो कर रही है, तो उनके वहां रिपोर्ट पहुंचाना कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं आपके सामने, वो बहुत जरूरी है। और फिर मैं भी अगर कोई ऐसी बात हो जहां पर विस्थापन होने वाला हो या पुनर्वास ठीक से नहीं किया गया हो, तो उसको लेकर मैं भी इसको आगे कर सकता हूं। मैंने कई जो विस्थापन की बातें नर्मदा की है, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है पिछले 4 साल से, उसके आधार पे मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। तो ये बातचीत चल रही है। तो इसे कई मैं सुझाव ये दूंगा कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से अगर आपके अगले 2 दिन में थोड़ी सी बैठक हो जाए इन सब मुद्दों पर कि कैसे कैसे संयुक्त राष्ट्र को हम लोग इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो क्योंकि इंदु प्रकाश जी और ललित हैं और लोग हैं, लीना है, ये लोग सब जानते हैं, मालविका हैं इधर ह्यूमन राइट्स नेटवर्क से, शिवानी, तो वो आप सबके साथ बैठ के जिन लोगों को इसमें रुचि हो, आप सब मिलके कई चीजें हो सकती हैं और कई चीजें की भी जा रही हैं, पर सबको इसमें मिलने की बहुत जरूरत है। कोई जनरल इससे सबका फायदा हो सकता है। I want to know that the UNO, as per the verdict of UNO, forced eviction is the gross violation of human rights. But in India, we are seeing that most of the place, police, RAF, even CRP, even CAT, they are torturing upon the people. And personally, I have wrote 2 letters regarding forced eviction in Belegata Canal, forced eviction to the Geneva. But I am sorry to inform that I have not received any reply. Now you want to know how we can proceed to make to know the information to the UNO. I think you are absolutely right. The United Nations has recognized since 1993 that forced eviction are a gross violation of human rights, in particular adequate housing. And great work has gone on in this. I think that what is very important is the case that you are speaking about reaches the committee that I was mentioning, the Committee on Economic Rights. It reaches me. And I think when you have a meeting afterwards, I was suggesting before, I said it in Hindi, if the organizers can make a small meeting here in the next 2 days to discuss the issues and also to give addresses and contacts of where you can reach the information, and then I think we can proceed from that. But I would also like to say that the information should be, the statistics should be accurate, the case study should
there, and it should be well presented so that we can move forward. And also it should be made part of an alternate voting process that is already underway. And I think all of you can discuss that in more detail. Thank you. ऐसा माना जाता है कि लखनऊ के अंदर सरकारी रिकॉर्ड के अंदर स्लम बस्ती है ही नहीं, और ऐसे में तो हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भी आगे होंगे। तो इसके लिए सरकार पे कैसे दबाव बना सकते हैं? नहीं, पर ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर शहर के सीमा में जो लोग भी रह रहे हैं और सब लोग एक समान से लेना चाहिए उनको, तो ऐसा तो नहीं कह सकती सरकार की। और ये कई देशों में मैंने देखा भी है कि जो मास्टर प्लान्स बनते हैं उसमें जहां पर बस्तियां होती हैं उसको ब्लैंक, उसको मतलब खाली छोड़ा जाता है। तो ये तो बिल्कुल मानवाधिकार के खिलाफ है, ये तो वायलेशन है। तो इसको आप मानवाधिकार के स्तर पर लेकर आगे बढ़िए। उसमें मेरे ख्याल यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको बता सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके ऊपर तो केस भी किया जा सकता है इसके ऊपर। पर ऐसी जब चीजें होती हैं तब इस इंफॉर्मेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे नहीं पता था, अगर ऐसी चीजों पे हम लोग पूरे दुनिया में इसका वो पब्लिसिटी करनी चाहिए कि भारत में एक जगह ऐसी है जहां पर इस्लाम को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो भोपाल में भी नहीं, भोपाल पूरी लिस्ट बनाई है और यूपी में 4 जो है मतलब 10 लाख जनसंख्या की शहरें हैं। ये बहुत बड़ा एक विडंबना है कि किसी भी देश में मतलब जहां पर कि 10 लाख लोग हैं, अगर वहां पे इस्लाम नहीं है तो जाहिर है ये एक साजिश है सरकार की, जिसको कि हमने बात किया था अपने ग्रुप में कि ये हमें चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको एक याचिका देनी चाहिए कि सेंसस दोबारा कराना चाहिए उन शहरों में जहां पर इस्लाम नहीं दिखाया गया है, जहां इस्लाम है। तो ये जो मानवाधिकार के कानून है उसमें लिखा गया है कि जो भी सरकार इनको मानती है उनकी पहली जिम्मेवारी ये है कि जो सबसे कमजोर लोग हों या जो तो आवास अधिकार की तरफ वही है जो जिन लोगों का या हुआ है, कुछ पुनर्वास नहीं हुआ या बिल्कुल बेघर हों, तो इसको भी मानवाधिकार लेकर आगे हमें बढ़ना है। तो उनका अधिकार वही है जो और सब लोगों का है। जल्दी खड़े हो जाए बन रहे हैं और इनके झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाया जा रहा है, बस्ती के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो उनको ये क्या कानून ऐसा है कि इनके पास हम जाए कि ये रुक सके, इसके लिए थोड़ा कानून तो इसमें स्पष्ट है। ये जो भी होता है वो मानवाधिकार के खिलाफ है। तो कई संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे अपना राष्ट्रीय स्तर मानवाधिकार का कमीशन है, उनके पास जा सकते हैं। पर आप सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो संस्थाएं होनी चाहिए आप सबको मदद देने के लिए वो नहीं है, और सरकार है जो म्यूनिसिपैलिटी है जिनकी ये जिम्मेवारी है कि मानवाधिकार को अपनाया जाए, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं अपना रहे, सीरियसली ले रहे हैं। तो इसमें क्या क्या जो आप लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये भी सोचना है कि क्या क्या कैसी संस्थाएं होनी चाहिए लोकल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर जो हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स।
ये जो आपको दिया गया है अंग्रेजी में, ये शाम तक इसको हिंदी में अनुवाद किया जाएगा और शाम तक सभी को इसका ड्राफ्ट मिलेगा। नया सरकार का कार्यक्रम में ये लिखा है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए ये कार्यक्रम रहेगा कि बेदखली बंद होगा। जबरदस्ती से लोगों को घर से निकालना, झोपड़ी डिमोलिश करना, ये बंद होगा और गरीब के लिए घर बनाया जाएगा आपकी झोपड़ी के नजदीक, जहां पे लोग रहते हैं वहां के नजदीक से घर बनाया जाएगा लोगों को। ये लिखा है नया सरकार का कार्यक्रम में। कोशिश है कि अपनी तरफ से सरकार को एक कानून का ड्राफ्ट बनाए, सिंपल तौर से, साधारण तौर से, ज्यादा इसमें पूरा डिटेल में जाना पूरी नहीं है, लेकिन सरकार को एक कानून दे जिसको सरकार मतलब इसको ले सकते और इसको कानून बना सकता। ये कोशिश है। और शबाना आजमी से बात हुई, शबाना ने कहा कि अगर सहमति है लोगों का तो वो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग तय करेंगे और उनको मतलब अपने तरफ से उनको ये कानून का ड्राफ्ट जो है वो देने के लिए तैयार है और सरकार पर दबाव लाने के लिए तैयार है कि ये कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। इस ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर लोगों की अलग अलग राय है, तो इसको बार बार इसको बदली करके कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका फाइनल ड्राफ्ट बनाए ताकि हम सरकार को ये दे पाए। इसका मुख्य मुद्दा ये है कि जहां पे झोपड़ी है, जहां पे स्लम है, वहां पे सरकार को कानून लाए ताकि सभी लोग उसी जगह पर स्थायी बन जाए, तो रेगुलराइजेशन हो। तमिल में कुछ अनुवाद करना जरूरी है या हो रहा है? मतभेद शायद हो सकता है। स्लम का मतलब क्या रहेगा? इसमें हमने लिखा कि अगर गरीब के जो बस्तियां हैं कुछ सालों से वहां पड़ा है तो ये स्लम माना जाएगा। जैसा डिटेल का डेफिनेशन हो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग, गरीब लोग कुछ क्षेत्र में रहता है जहां पे स्थिति बहुत ही खराब है और वहां रहने लायक जगह नहीं है, तो वहां स्लम माना जाएगा और उसी एरिया में लोगों को अधिकार होगा। The first thing is, definition of slum is taken as a place where poor people are staying. तो सबसे पहले सभी को घर का अधिकार और जमीन का अधिकार, ये सबसे पहले अधिकार है। राइट टू हाउसिंग एंड राइट टू लैंड। दूसरा, सरकार का मास्टर प्लान, जो शहर का जो प्लान होता है, उसको चेंज किया जाए
बाकी जो 30 या 40% लोग हैं जो स्लम में रहता है, उस मास्टर प्लान में शहर का जो प्लान है उसमें मतलब उसको जोड़ दिया जाएगा। वर्तमान मास्टर प्लान में ऐसा है कि गरीब की जो जगह है वो उसमें नहीं जोड़ दिया गया, जैसे कि यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं जो गरीब है। The second thing is that the master plan shall have to be changed to recognize that 30% or 40% of the cities consist of poor people, and appropriate allocation of land should be made consistent with the number of poor people. तीसरा, सरकार का जिम्मेदारी रहेगा कि स्कीम फ्रेम करना, प्लान बनाए गरीबों के लिए घर हो और जमीन। चौथा, घर देते समय कि बैंक से या सरकार से कर्ज का पैसा, लोन को कहते हैं, लोन साथ साथ में घर देते समय उनका सुविधा भी हो। So, state should frame schemes so that houses can be given to the poor, can be made for the poor, and in framing schemes, they'll also provide for credit for the poor. अभी बेदखली के बारे में ऑन एविक्शन, सबसे पहले ये कानून बनने के 1 साल के अंदर सरकार को नोटिफिकेशन में, गैजेट के नोटिफिकेशन में लिखना पड़ेगा ये सारे स्लम्स उसी एरिया में उनको परमानेंट बनाया जाए, स्थायी जैसे बनाया जाए। Within 1 year of the passage of the Act, every government should notify in the Gazette the slums which will be declared permanent, and they will be regularized. Secondly, अगर बहुत ही जरूरी काम है जिससे किसी को यहां से हटाना जरूरी है, तो सरकार को उस जगह के आसपास कोई ऐसा जगह चुनना चाहिए जहां पे ये लोग वहां से यहां बिता सकता और वहां पे सभी को स्थायी बनाए। कुछ ऐसा होते हैं जगह जहां पे सरकार का बहुत ही जरूरी काम है, तो ऐसा अगर काम हो तो सरकार को करना पड़ेगा कि पास में कोई जगह हो, दूर तो नहीं लेकिन पास में कोई जगह हो जहां पे जमीन दिया जाएगा लोगों को और वहां पे लोगों को स्थायी जैसे बनाया जाएगा। इसमें थोड़ा सुझाव आया लोगों से जो आपके ड्राफ्ट में नहीं है, इसमें यह है कि गार्डन बनाना, बगीचा जैसा बनाना, स्टैचू या क्या कहते हैं उसको, मूर्ति जैसे लगाना, फिर फ्लाईओवर बनाना वगैरह, ये जैसा काम इतना जरूरी नहीं माना जाएगा जिससे लोगों को उस जगह से हटाए। जैसे कि आपको मालूम है कि यमुना पुष्कर को निकाला एक बड़ा सा बगीचा जैसा बनाने के लिए, तो इस कानून के हिसाब से बगीचा बनाने के लिए लोगों को हटाना ये गैर कानूनी रहेगा। अगर सरकार कहेगा कि मुझे फ्लाईओवर बनाने के, तो फ्लाईओवर बनाने के लिए लोगों को हटाना ये गैर कानूनी रहेगा। बहुत ही जरूरी, अगर कुछ ऐसा काम हो जहां इस काम कोई और जगह नहीं हो सकता, तब सरकार आपको यहां से नजदीक की जगह पर शिफ्ट कर सकती है। Second point is that if there is some very, very urgent work, and that urgent work does not include making a garden, making a flyover, putting up a murti, putting up a garbage disposal facility, वगैरह वगैरह. If there is a very important task which government cannot do unless they shift people, then they will shift people nearby, locate land close by, and settle the people there. बेदखली है, शायद ये नजदीक भी, बेदखली करते समय उतना ही लोगों को शिफ्ट करना जो जरूरी है प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि बॉम्बे का एक नाला को कवर करने का था, कवर करने के लिए 50 लोगों को निकालने का था, सरकार ने 1000 लोगों को निकाला।
तो ये गैर कानूनी रहेगा। अगर काम के लिए 50 लोगों को निकालना है तो 50 लोगों को शिफ्ट करें, लेकिन बाकी के लोग वही रहने दें। तो व्हेन शिफ्टिंग पीपल, you will only shift those that are absolutely necessary for the purpose. तो सबसे पहले अभी दोबारा मैं बता रहा हूं, किसी को हटाना, झोपड़पट्टी बुलडोजर लाना, गरीब को निकालना, ये गैर कानूनी रहेगा और सरकार को गैजेट में लिखना पड़ेगा कि ये सारे झोपड़ी जो है सब स्थायी हो गया। अगर समझो 10 या 20% लोगों को हटाना है तो हटाया जाएगा, लेकिन नजदीक हटाया जाएगा, दूर तो नहीं, और वहां पे लोगों को स्थायी बनाएगा। ये हमारा सबसे मुख्य सेक्शन। So I have repeated that the thrust of the act is to say that as far as possible should be removed. People should not be removed, and only in extreme circumstances people will be moved close by. That's point number 1. दूसरा, अगर किसी को हटाना है तो उनका अधिकार क्या रहेगा? What will be the rights of the persons who are to be shifted? सबसे पहले शिफ्ट करने के 6 महीने पहले लोगों को नोटिस, लोगों से बातचीत किया जाएगा कि हम यहां से वहां आपको शिफ्ट करने वाला है। लोगों को कारण बताएगा कि इस कारण की वजह से हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत होने के बाद ही और तमाम लोगों को सारे बात खुलेआम से बात करने के बाद ही सरकार एक योजना बनाएगा शिफ्ट करने की। सो what are the rights of the people have to be shifted? First of all, they will get notice 6 months in advance. And after getting notice 6 months in advance, government will disclose fully the reason why they are required to be shifted. Government will disclose full reasons why people are required to be shifted. They will be heard, proper hearing will be given, and a final plan will be made. दूसरी जगह जो है वो अपनी जगह से नजदीक होगा. The place to be shifted will be close to the present place. पूरा ऑल्टरनेट जो स्कीम है, दूसरी जगह, जमीन, घर, पानी, बिजली बनाया जाएगा पहले, बाद में लोगों को शिफ्ट किया जाएगा. The house, the electricity, the water supply, the sewerage will be made first, and only then will people be shifted. और आखिर में बारिश के समय पर या ठंड के मौसम में किसी को बेदखली नहीं किया जाएगा. अगर शिफ्ट करना है तो भी ऐसा मौसम चुनेगा जहां पे लोगों को आराम से कर पाएंगे, जा पाएंगे. Evictions will not be done in the rainy season. Evictions will not be done in winter, and so on. ये बेदखली के लिए, शिफ्ट के लिए, यहां से नजदीक अगर शिफ्ट होना है तो सरकार इसके लिए पूरा पैसा देगा. गरीब से कोई पैसा नहीं देगा शिफ्ट करने के. तो शिफ्ट पीपल, नो मनी विल. अपन चाहेंगे कि अपन डिस्कशन कर लें इस पर, यदि कुछ लोगों ने देखा है ये बिल पर. सीधे अपन डिस्कशन पे जाएंगे. मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं. बहुत सारे साथी हैं जो कॉलिन जी को शायद नहीं जानते होंगे. कॉलिन जी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील हैं और काफी लंबे समय से लोगों के संघर्ष के साथ जुड़े रहे हैं और लोगों के मुद्दों को लेकर कोर्ट में, पहले बंबई के हाई कोर्टों में और दूसरे कोर्टों में और लेबर यूनियंस के साथ काफी जुड़े रहे हैं. और अब सुप्रीम कोर्ट में कॉलिन और उनके बहुत सारे वकील साथी आम आदमी के मुद्दों को लेकर खड़े होते हैं और आज हमारे बीच में है. तो हम तालियों से एक बार स्वागत करेंगे. साथियों, इसको अलग रखना.
मेन मुद्दा के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि फिलहाल स्थिति ऐसा है कि हर जगह सरकार आती है और जगह तोड़ती है। दिल्ली का जो बेदखली है ना, इतना बुरी तरह से हुआ, कोई ऐसा आप यकीन भी नहीं कर सकते। कानून में क्या हुआ, स्थिति ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जो है वो पिक पॉकेट जैसा है। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग पिक पॉकेट जैसा है, तो सरकार अगर वो जमीन देना चाहेंगे तो वो गैर कानूनी है। मैं ये संदर्भ में बता रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने जब जमीन देने का कोशिश की लोगों को, गरीब को, दिल्ली सरकार ने जब सोचा कि ठीक है हम इसको यहां पे रेगुलराइज करेगा, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तुम गरीब को कैसे ये जमीन देते हो, क्योंकि झोपड़ी में रहने वाले लोगों को ये जगह कैसे देता है सरकार, ये लोग तो गैर कानूनी रहते हैं यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग पिक पॉकेट जैसा है। तो कानून में आपका कोई अधिकार नहीं है, कानून में गरीब का कोई अधिकार नहीं है। और सरकार अगर कोशिश भी करेगी कुछ जमीन देने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो हाईकोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा और कहेगा कि आपका कोई अधिकार नहीं है गरीब को कुछ दे। ये अजीब सा स्थिति है। तो क्या किया जाए? सरकार आते हैं हर दिन, दिल्ली में हर दिन आते रहते और जमीन बिगर नोटिस, लोगों के पास जब राशन कार्ड हो या ये सबूत हो या वो सबूत हो, सरकार कहते हैं कि आप गैर कानूनी है, बुलडोजर लाएगा और वो सारे जमीन तोड़। दूसरी जगह देना भी अधिकार नहीं है, कुछ लोगों को देता है, कुछ लोगों को नहीं देता है। हालत बहुत ही खराब है। बॉम्बे शहर से जहां पे मैं रहते थे पहले, बॉम्बे शहर में लाखों लोगों को निकाला। संजय गांधी नेशनल पार्क से लाखों लोगों से बुलडोजर लाके सत्यानाश कर दिया। लाखों लोगों को जो 30-40 साल से रहते थे उनको निकाला। हैदराबाद में जहां पे वो क्या है, वो रिवर स्कीम है ना, आपका रिवर स्कीम है, रिवर स्कीम हाँ, उसको थोड़ा सुधारना, फिर बाहर से फिरंग लोग आएंगे, वहां वोटिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो लोगों को निकालना। लोगों का घर पक्का है, मैंने खुद ही देखा, पक्का घर है, बहुत अच्छी जगह है, शानदार जगह है, लेकिन सरकार कहते हैं कि सब गैर कानूनी, आपको यहां रहने की राइट नहीं। वहां पे भी बुलडोजर आएगा, बुलडोजर आके तोड़ डालेगा। तो है कलकत्ता में मैंने देखा एक के बाद एक दलित बस्तियों को बुलडोजर से नष्ट कर देगा। सब जगह ऐसा है। तो कानून में हमारा कोई अधिकार नहीं है। सरकार अगर कोई करना चाहेंगे तो सरकार कर ही नहीं सकता। ऐसे सरकार करना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन अगर सरकार कुछ करना चाहेंगे वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पिक पॉकेट जैसा हो गया। गरीब लोग पिक पॉकेट जैसा है, डेकॉइट जैसा हो गया। तो अपनी तरफ से कोई कानून हो, ये बहुत जरूरी है। ये नया सरकार जो है, नया सरकार ने लिखा, अच्छा मैं अंग्रेजी में बताऊंगा। और आजमी ने सपोर्ट किया, शबाना आजमी ने कहा कि ये होना बहुत जरूरी है। मैंने भी बहुत कोशिश की लोगों सरकार को समझाना कि ये कानून हो, और अगर आप सहमति से कोई कानून बनाएगा, ड्राफ्ट बनाएगा, तो मैं सरकार को, प्रधानमंत्री के साथ मैं मीटिंग टाइप करूंगा और मैं इस ड्राफ्ट को पेश करने का कोशिश करूंगा। So Shabana Azmi has promised us that she will try and influence the government and give this act to government and try and convince them to do this. मेन मुद्दा ये है कि बेदखली बंद हो। मेन मुद्दा इस कानून में ये है कि बेदखली बंद हो। दूसरा, क्या सारे जो झोपड़पट्टी है उसी एरिया में, सारे झोपड़पट्टी जहां तक हो, सारे झोपड़पट्टी को उसी एरिया में स्थायी बनाए, रेगुलराइज हो। जितने भी बड़े झुग्गी झोपड़ी है उसी एरिया में उनको रेगुलराइज करें। गैजेट नोटिफिकेशन में बनाए कि ये सारे झुग्गी झोपड़ी जो है, ये सारी झुग्गी झोपड़ी स्थायी जैसे कानूनी हो। ये दूसरा मुद्दा है। In 10% or 20% cases where it is not possible to regularize the slum for some very urgent reason, then close by land must be given where they can be regularized.
तीसरा मुद्दा ये है, जैसे हमने दिल्ली में देखा, ये लाजपत नगर का केस मैंने देखा जो मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लिया। लाजपत नगर का जो बेदखली हुई, ये इसलिए हुआ क्योंकि लाला लाजपत राय का एक मूर्ति बनाने का था। लाला लाजपत राय का मूर्ति बनाने के लिए करीब 1000 लोगों को घर से निकाला और सरकार ने लिखित रूप में दिया एफिडेविट में कि हमें मूर्ति बनाने का यहाँ पे इसलिए लोगों को निकालना। और जब सुप्रीम कोर्ट तक गए तो मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब कारण देखो कि मूर्ति बनाने के लिए 1000 लोगों को निकाल रहा है, कि क्या ये सही कारण हो सकता है? तो इस कानून में लिखा जाएगा कि मूर्ति बनाने के लिए, बगीचा बनाने के लिए, ये फ्लाईओवर बनाने के लिए ये सही कारण नहीं रहेगा लोगों का घर तोड़ने के लिए। तो इट विल बी रिटन इन द एक्ट दैट फॉर मेकिंग फ्लाईओवर्स एंड गार्डन्स एंड सो ऑन। तो ये मेन मुद्दा है और इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो क्या सुझाव है लोगों का, क्योंकि क्या सहमति से एक कानून बनाना जरूरी है। At the outset, I thank the Kalim for framing this bill. Overall, it's a very good bill. Still, we need certain clarification and certain modification. One aspect is the title of the bill, we put it is a Housing for the Urban Poor Bill. Now, usually any bill, they may definition for slum. He put his own definition. There is a Slum Act, Slum Clearance and Improvement Act 1925. If they put it that same definition, if they put the same definition, might have one aspect is there. Another aspect is who is urban poor. That is also we need a definition because very vague aspect is there. Now he put regarding public purpose, person can evict. Even a high court, they are given anything is a public purpose. So very difficult to define what is the public purpose. Same manner in our high court judgment, nearness. Even they consider the high court is a 25 kilometers is a nearness. We don't know regarding what is the nearness. Our consumption itself, the livelihood aspect should not affect that. That is also. Now, most of the thing he wants to know about that identification and regularizing the slum. In almost all government, they have put regarding these year as our criteria, 1978, 1980, 1983, up to that only they will regularize. They may not regularize afterwards. That is also, so many high court also they have accepted this. Another aspect is the most important crucial thing regarding this, he used the word called state. I don't know, very, very vague term. As far as the constitution is concerned, housing is concerned, it comes on the concurrent list. Is it? If it is a concurrent list, most of the demolition is done by state or local bodies. But you know, we have to use the instead of state, we have to use called appropriate authorities. Appropriate authorities including the state and the local bodies. Because most of the eviction, with the help of local bodies, police, they will evict them. Unless one aspect regarding who is the state, what is the duties of the state, if we clearly specify the duties of the state and also rights of the slum dweller, then we may not climb that path. That is also that path. Then, if you take a survey about a slum, there's a one major problem in Chennai and other place. Most of the slum dwellers are reside in a private slum. As the government say, we cannot do anything about a private slum. Even though there is an act say regarding they can acquire the private slum. Same manner, if it is a central government land, state government cannot intervene. This aspect also we should keep in mind regarding regularizing the slum. That's all. I would like to thank Colin for making this urban poor bill. But certain points which I would like to raise. One, when we are talking of urban poor, this bill again limits itself to the slum dwellers. There is no mention for the housing of the homeless people anywhere. What are the rights and where do they get? Second thing is regarding the definition. If in the bill we agree that it's an encroachment on the public land, then it in itself makes that place as illegal. So we as a housing right organizations cannot say that it's an encroachment. So that definition needs to be changed and it can be based on anything with, I'll just read the definition which is there. Slum means any place of residence of the urban poor
established by encroachment on land, other public of right. So either we have to change this word encroachment, we cannot take that. Then we talk of the bill which we say, because here when we are talking of evictions and rights during eviction, I think we all agree that evictions are not legal and we have to oppose the evictions. अगर हम evictions को oppose करते हैं और बिल में अगर ये eviction को right मिलता है तो उसका पोजीशन करने का कोई हमको हक नहीं बनता। उससे पहले उनको हटना है कि नहीं हटना है, ये राइट भी उनके पास होना चाहिए और सरकार अपने एक तरफ से ये नोटिस इशू नहीं कर सके, वो उनसे डिस्कस करने के बाद जगह को फाइनलाइज करा जाए तभी उसका इविक्शन का नोटिस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स दिल्ली में हैं जो कि हमने देखा कि जो स्लम्स रोहिणी में और उसके आसपास थे, जब उनको पास में हटाया गया तो लोग ज्यादा दुखी नहीं थे। इसके मुकाबले जो लाजपत नगर और आपके सिटी कॉम्प्लेक्स उनको हटा के जब नरेला और उधर भेजा गया तो उनका पूरा रोजगार सब कुछ उधर गया था, जबकि रोहिणी वालों को नरेला भेजा तो उससे उनको रोजगार का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो एक हक स्लम डवेलपर्स को ये होना चाहिए कि वो भी जगह तय कर सके उनको कहाँ जाना है और तभी उसके बाद नोटिस दिया जाए और उसके बाद उनको हटाने की बात की जाए। सरकार बगैर उनकी इच्छा के कोई भी इच्छा नहीं होना चाहिए। और जो इसमें एक चीज मैं बोलूंगा जरूर कि सारी चीजें इसमें मिनिमम कॉस्ट, जैसे प्रोफेसर शुनोकर ने कहा मिनिमम कॉस्ट क्या है और एट अ कॉस्ट प्राइस, तो उसका भी डिसीजन हम क्यों स्लम डवेलपर्स पे करें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी कॉस्ट को क्यों पे करें। और ह्यूमनली तो है दैट इज ट्रू, ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें कॉस्ट प्राइस सारा सरकार पे करे। आप नंबर बोलते जाए बीच में 5 का 4 है। ये एक चैप्टर 5 पेज नंबर 7 चैप्टर 6 राइट टू रिलोकेशन। Relocation scheme of the authority shall provide at the very minimum for transport to the new site. So what is the minimum? But then this means that the government will provide the minimum cost and rest of the cost will be paid by the... So okay, that is one. Second thing, right to rehabilitation also says, and shall be paying so as to create the relocated site at the very minimum the same or similar situation prevailing at the existing site. So that is also there. When we are talking about relocation site, we should decide that what is the choice of the people whom they want, what kind of site they want, instead of the government deciding. And what and other thing is that other law which is a government's slum policies and all. So if we are having this law also in that same nature, what effect will it be? So all the government policies on slums, on urban homeless, all of them have become redundant and none of them are in scope, either by the government or by the scope. So even if this law comes into it, this bill is made, and that faces the same fate, either it's overwritten by the court or by the government, then who is the person who takes over? So there should be some kind of a special emphasis on that part also. The bill which is being made. Also, that's one main point, that all the urban poor should be covered. It only covers the slum dwellers, leaving apart the choice of the other people. तो बिल बनाया है ये उसमें डेफिनेटली मतलब जो सोच हमारी है उस सोच की तरफ की पूरी बिल की जो कार्रवाई है वो है, लेकिन कुछ मौलिक प्रश्न है, कुछ जो बेसिक प्रश्न है मैं पूछना चाहता हूँ ये कि यानी 1992 में एक जो हमें सबको पता है कि नेशनल कैंपेन फॉर हाउसिंग राइट्स जो करीब 1980 से लगभग पूरा 10-12 साल चला है कैंपेन वो, जिसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस कोथी, तमाम लोग थे उसके अंदर जो है और कुलीन भी थे उसके अंदर तो, और उस मूवमेंट में चलते हुए करीब
एक बैठकें पूरे देश में हुई और उस बैठक के बाद करीब 6 साल का पूरा एक प्रोसेस चला, जिसके तहत जो है अंत में आकर के एक नेशनल हाउसिंग राइट्स बिल बना। अच्छा, नेशनल हाउसिंग राइट्स बिल को चूंकि मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, उस बिल पहले बात तो बहुत इलाबरेट बिल है, बहुत ही लंबा बिल है वो, और उसके अंदर स्लम डवेलप की बात नहीं है, उसके अंदर गांव के गरीब शहर के गरीब दोनों की बात है, उसके अंदर मकानों की बात गांव में रहने वाले लोगों के लिए और शहर रहने वाले दोनों के लिए है, और उसमें कहीं ये बात भी है कि आगे चल के अगर जो मकान है उसमें अगर लोग बढ़ते हैं तो नए मकान बनाने की भी परमिशन होनी चाहिए। इस्लाम में आपने एक बार दे दिया पट्टा जो है जमीन दे दी, उसमें जो परिवार बढ़ रहा है तो कोई आगे नहीं मिलने वाला जमीन या मकान जो है, जबकि उस पूरे कैंपेन जो था उसमें हाउस रेट बिल का उसके अंदर पूरे वो क्लॉजेस थे। तो मैं पहले से जानना चाहता हूँ कि यानी कि इस बिल को दोबारा से बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये बिल मुझे लगता है कि उस बिल के सामने मतलब सब कुछ जाते हुए यानी इसके अंदर जो एक पॉजिटिव चीज है वो कि पॉजिटिव कहीं है इसके अंदर, लेकिन जो मूलभूत चीज जो मुझे लगता है कि यहाँ से हम उसमें डाल सकते हैं जरूर, यानी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात की आपने, ICSR की बात की आपने सीडॉ की बात की आपने, CRC की बात की, सारी बात की है, वो एलिमेंट में शायद शुरू में नहीं है लेकिन वो चीज जा सकती है। मुझे लगता है कि उसी बिल को हम अडॉप्ट करें, उसी बिल को अगर हम पेश करते हैं पार्लियामेंट में तो हमारा हाथ और मजबूत होगा, क्योंकि इस बिल में जैसे धनंजय ने मेरे साथी ने जो है कुछ प्रश्न उठाए, जाहिर है मुझे भी उससे आपत्ति है कि यानी अगर स्लम जो रहते हैं उनको हम कहें कि अपने डेफिनेशन में सीधा बोल दें हम कि जो अर्बन पुअर है स्लम स्टैब्लिश होता है कि अगर हम उसमें एनक्रोच करें तो अगर हमारा पूरा बिल में ही हम उसका एनक्रोचमेंट मानते हैं, जबकि हमको ये मानना चाहिए कि इस्लाम तब बना है क्योंकि सरकार की कोई नीति नहीं रही है मकान बनाने की। इस्लाम एक उत्पत्ति है सरकार की ना सोच की, सरकार की पॉलिसी ना होने की, तो आई थिंक हमें उस तरीके से करना चाहिए क्योंकि उसमें सरकार जिम्मेदार है, उसमें स्लम में रहने वाला एक व्यक्ति जो है जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लम टू अलाउ बिकॉज स्लम वर क्रिएटेड, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट astute policies and urban policies followed in rural area and urban area. That's one. The second thing is कि इसमें आपने actually page 5 and this is chapter 3 clause 4 में जब आप बात करते हैं ना, such schemes may provide for the payment of a reasonable amount and beneficiaries keeping in view of the economic status. यानी कुछ स्कीम बनेंगी मकानों के लिए, उनको रहने के लिए, उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो स्लम डवेलपर्स पे करेंगे। मुझे ये लगता है कि उसके देख रखरखाव के लिए सबके लिए आज के संदर्भ में जब वर्ल्ड बैंक कुछ बात करता है O&M का, हर चीज की मतलब यूजर फीस है, प्राइवेट पार्टीज आ रही है उसके अंदर, हमारी तरफ से ये क्लॉज डालना बिल के अंदर मुझे लगता है काफी घातक होगा। हम इस बिल में कोई भी जैसे धनंजय ने प्रश्न उठाया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले इस प्रश्न को लेकर के हम अपनी तरफ से क्यों डालें कि हमें पैसा पे करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन की वजह से। ये सरकार मतलब ये हमारा हक है कि सरकार हमें जो है परमिशन दे और सरकार हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि स्लम बनाने में उसकी भागीदारी ज्यादा है बनस्पत हमारी जो है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे बिल को देखते हुए यानी जो पुराना बिल है हमारा जो नेशनल कैंपेन हाउसिंग राइट्स NCHR का बिल है, मुझे लगता है क्योंकि उसमें आप सब लोग जुड़े रहे हैं और वो एक बहुत ही पुख्ता बिल आपने तैयार किया है, अगर उसी बिल को पूरा जोर लगा करके पास कराएं आप, मुझे लगता है कि हम सबका एनर्जी, क्योंकि हमें से कई गैब्रियल भी हैं, वो भी थी इसके अंदर, मिलून भी थे, आप थे, काफी लोग हैं और उससे हम लोग काफी इंस्पायर होते हैं इधर से, उस पूरे बिल से इंस्पायर होते हैं, पूरे प्रोसेस इंस्पायर होते हैं और ये नेशनल फोरम का हाउसिंग जो पूरा है, हम उस पूरे चीज को चाहते हैं कि हम उस पूरे प्रोसेस को आगे लेके चले। तो हम चाहते हैं कि आप उस बिल को आगे लेके आए और उसमें जो है और जो संशोधन करना है, जो उसमें अनुमोदन करना है, जो भी चीज लाना है हम उसमें डालें उसको और मतलब जितने गैप्स हैं, कुछ थोड़े गैप्स हैं उसमें कुछ अच्छे डिफाइन नहीं किया गया था, उसको डिफाइन करें हम और उसको आगे लेके आए। ये मेरे कुछ प्रश्न थे। थैंक यू।